Hello guys, myself Professor Rishi Pandya, and today we are discussing about the geotechnical engineering, which is the branch of civil engineering. Okay, and this video lecture series we are concluding is from the syllabus of Gujarat Technological University, and today's our topic is from the introduction unit. So let's start with the definition. So, as we told as I told earlier, that it is the branch of civil engineering. So the definition basically is from the as per the civil engineering is soil may be defined as an uncemented or weakly cemented gathering of mineral particles which are produced by the disintegration of rocks, right? And that means it is a non-cemented material. We can say that uh, you all know that cement is a material which can bind the other materials like aggregates and reinforcement bars, right? So here we are talking about uncemented material. So what is it? That means that our soil is individual particles which are not has binding properties. Okay. Then geotechnical engineering is a branch in which foundation engineering, soil mechanics, all the things are covered, right? So let's consider a foundation engineering definition. The term foundation engineering is a branch of civil engineering which is associated with the design, construction, maintenance, and renovation of footing, foundation wall, pile foundations, and all other structural members which form the foundation of building and other engineering structures. So all of this stuff can be included in the geotechnical engineering, right? आपको मैं हिंदी में समझाऊँ तो जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग जो भी फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फाउंडेशन के ऊपर ही सब बेस करता है, राइट? पूरा सुपरस्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो फाउंडेशन कहाँ पे रेस्ट होता है? वो अर्थ सरफेस पे रेस्ट होता है. अर्थ सरफेस पे क्या है? अपनी सॉइल है, ठीक है. तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बाद में समझाता हूँ. पहले आपको मैं एक बेसिक डेफिनेशन समझा दूँ कि भाई चलो सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तो हमने समझ ली, बट एक्चुअल में क्या है भाई सॉइल? तो हम सब कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं रोज सॉइल को, है ना? तो वो बेसिक डेफिनेशन पकड़े तो वो ये होगी कि जो हमारा अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो अनग्रेजुएटेड मटेरियल है जहाँ पे रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो, राइट? ठीक है, समझ रहे हो? तो जो प्लांट्स और रूट्स है वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसा मटेरियल हमारा होगा सॉइल, राइट? मतलब क्या हुआ? द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर द रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन which is unaggregated and unconsolidated material is considered as a soil. ठीक, तो ये हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉइल. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन के ऊपर. द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज contained by the Dr. Carl Terzaghi in 1925 when his book Erdbau-Mechanics on the subject was published in German language. Right here, I mentioned that Dr. Carl Terzaghi, who is also considered as the father of soil mechanics. Right, his book Erdbau-Mechanics, which is pronounced in English as earth mechanics. Right, it is a German word, so earth mechanics can be translated as Erdbau-Mechanics in German language. Then, according to Terzaghi, soil mechanics is the application of law of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with the sediments and other unconsolidated solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rocks, regardless of whether or not they contain an admixture of organic constitution. ठीक है, वो सिंपल किसी का ऑर्गेनिक और कोई भी मटेरियल जो ऐसा नहीं है जो बाइंडिंग करता हो, उसका कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है. इट इज अ nothing but a disintegration or weathering of rocks, either it is mechanical or chemical. हम weathering के बारे में और डिटेल में आगे कहीं कभी ना कभी पढ़ेंगे. So let's carry forward to the material. Okay, so हमने डेफिनेशन तो समझ ली सॉइल की. अब सॉइल के अंदर कौन सी चीज कन्वर्ट होती है, ठीक. अब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ सॉइल बट ऑल्सो थोड़ा बहुत हमें रॉक के बारे में भी पता होना चाहिए. वैसे तो रॉक के बारे में टोटली जियोलॉजी में आता है,
लेकिन हम जो पढ़ते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा बहुत हमें रॉक का भी नॉलेज होना चाहिए। सो कितने टाइप्स होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर कौन से टाइप हो गए, ठीक है, वो हम पढ़ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साइज ऑफ डायमीटर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल साइज डायमीटर होगा उसके बेसिस पे उसके कितने पार्ट्स पड़ते हैं। तो वो हो गए हमारे बोल्डर्स, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके डिटेल्स में आपको पढ़ना हो तो आपको मिल जाएगा IS 1498-2000 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग छोटे से पार्टिकल से लेके बड़े पार्टिकल तक जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्ले की। तो जो पार्टिकल साइज डायमीटर लेस देन 0.002 mm, मतलब 2 माइक्रोन्स, 2 माइक्रोन से भी कम पार्टिकल साइज जिसका रहेगा वो सब क्ले के अंदर कंसिडर कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिल्ट, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज में, ठीक है। तो वो क्या होगा 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक, ठीक है। मतलब 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक के जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सब सिल्ट कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक की सब सैंड आती है। सैंड के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड के अंदर। सो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन तक की जो भी पार्टिकल साइज के जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो फाइन सैंड कहलाएंगे, ठीक है। एंड 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक के जितने भी पार्टिकल साइज है वो सब मीडियम सैंड कहलाएगी। एंड देन 2 mm से लेकर 4.75 mm के जितने भी पार्टिकल साइज डायमीटर रहेगा वो सब कोर्स सैंड कहलाएगी, राइट। उसके बाद आता है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स लाई करता है 4.75 mm से लेके 80 mm तक, ठीक है। उसके अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। तो जो फाइन ग्रेवल्स रहेगा उसका डायमीटर रहेगा 4.75 mm से 20 mm, एंड जो कोर्स ग्रेवल रहेगा उसका डायमीटर होगा 20 mm से लेके 80 mm, ओके। उसके बाद आता है कबल्स। कबल्स की साइज होती है वो 80 mm से लेके 300 mm तक जाती है, ठीक है। उसके बीच के जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सब कबल्स कहलाएंगे। और उससे अगर 300 mm से ज़्यादा बड़ी साइज के रहेंगे वो सब कहलाएंगे बोल्डर्स, राइट। द पार्टिकल साइज डायमीटर ग्रेटर देन 300 mm इज कंसिडर एज अ बोल्डर। हियर सबसे बड़ी साइज रहेगी बोल्डर की, सबसे छोटी साइज रहेगी क्ले की, 2 माइक्रोन। अब यही सब हमारे जो फर्दर हमने क्लासीफाई किए क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कबल, बोल्डर्स को, उसको हम 2 पार्ट में भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि फाइन सॉइल और कोर्सर सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार्ट में आपको दिखाया हुआ है फाइन सॉइल और कोर्सर सॉइल। ये रही फाइन सॉइल, मतलब जो भी फाइन सॉइल है उसके अंदर कौन से आएंगे, क्ले और सिल्ट, राइट। और ऊपर की है सब कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल के अंदर सैंड, ग्रेवल, कबल, बोल्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्दर डिवाइड किया वेरी कोर्स सॉइल, मतलब ग्रेवल्स के ऊपर की जो भी साइज रहेगी उसको वेरी कोर्स सॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन के लिए अलग टेक्निक्स है, जैसे कि सीव एनालिसिस वगैरह होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो फाइन सॉइल होगी उसके लिए भी एक पूरा अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम रहेगा जो हम इजीली नहीं कर, मतलब देख के नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये 75 माइक्रोन से नीचे की सीव है, उससे कम सीव हमारे पास होती नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें हाइड्रोमीटर टेस्ट करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गई पूरी डायमेंशन। तो विजुअली कैसे दिखते होंगे, यहाँ पे मैंने फिगर रखी हुई है बोल्डर्स की, ठीक है। देन कबल्स, उससे छोटी साइज में आएंगे ग्रेवल्स, उससे छोटी साइज में आएंगे सैंड। सैंड आपने जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे काफ़ी बार देखी होगी, ग्रेवल्स भी आपने काफ़ी बार देखे होंगे, ठीक है। हम जनरली उसको एग्रीगेट्स कहते हैं। वो ग्रेवल्स 20 mm से कम डायमीटर वाले लेते हैं, सॉरी 20 mm के डायमीटर के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्ट एंड देन क्ले। सिल्ट और क्ले आपको देख के ज़्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन सिल्ट जो होती है वो नॉन प्लास्टिक होती है मटेरियल, ठीक है। मतलब आप उसको हाथ में लोगे तो वो चिपकेगी नहीं। अगर आप थोड़ा अंदर पानी ऐड करोगे, ड्राई सिल्ट है, थोड़ा पानी ऐड करोगे, आप उसको रब करोगे पाम में लेके तो वो चिपकेगी नहीं आपके हाथ में, जबकि क्ले जो होगी वो चिपकेगी, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है क्ले और सिल्ट का। जैसे कि आपको बेटर विजुअल एक्सपेक्ट में समझाओ तो आप क्ले के मोल्ड्स बना सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे मोल्ड्स बना सकते हो। काफ़ी बार हम लोग गणपति जी की मूर्ति भी बनाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे खिलौने बना सकते हैं, जैसे कि कुंभार जो होता है मटके वगैरह बनाते हैं वो सब क्ले से बनता है, क्लियर। यही बेसिक डिफरेंट है। इस सिल्ट और क्ले का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी प्लास्टिक एनालिसिस ही करते हैं उसका टोटली, ठीक है। एटरबर्ग लिमिट्स फाइंड करके हम डिफाइन करते हैं कि ये सिल्ट और क्ले कितनी है, ये सब।
सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर कि स्कोप ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। चलो हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन समझ लिया, ठीक है। उसके सॉइल का जो क्लासिफिकेशन समझ लिया एज पर द डायमीटर, ठीक है। विजुअल एस्पेक्ट समझ लिए कि कैसा दिखता होगा। और अब बात करेंगे हम लोग स्कोप की, कि ये सब हमने समझा तो उसका ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, वाई शुड वी स्टडी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो बात कर रहे थे हम स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इसका स्कोप जनरली हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखने मिलता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हो गई सॉइल की, विच इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन द फॉलोइंग टू मैनी ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए 6 पॉइंट। फाउंडेशन डिज़ाइन के अंदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर, पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम्स, ठीक है। तो ये हर एक जगह पे हमें कहीं ना कहीं के अंदर जो भी टेक्निक्स सॉइल की जो भी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो ये सब चीज़ हमें इसके बारे में समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ आज, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर हमें सबसे बेसिक टर्म होती है पैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो हम जो भी डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर का जो भी लोड होगा, ठीक है, वो अपनी सॉइल कितना कैरी कर पाएगी, उसकी बैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब उससे ज़्यादा अगर लोड हम देंगे तो सॉइल शेयर में फेल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर्स के ऊपर विस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें पूरा फाउंडेशन डिज़ाइन करना पड़ता है, तो बैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने की। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी फाउंडेशन टेक्निक हम यूज़ करें, शैलो फाउंडेशन यूज़ करें या फिर डीप फाउंडेशन टेक्निक यूज़ करें, ठीक है। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर तो कितने स्टोरी का रखें, तो ये सब चीज़ हमें सॉइल के ऊपर से पता चलेगी। उसके बाद आती है बात रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की। अब रिटेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग जनरली आपने देखा होगा, आप मतलब जो भी अहमदाबाद में रहते होंगे, आप कहीं ना कहीं अहमदाबाद पे जाओगे तो कोई भी बाउंड्रीज है, समझ लो आप वाटर बाउंड्रीज हो गई, सॉइल बाउंड्रीज है, ठीक है। तो उसको रिटेन करने के लिए हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसके अंडरनीथ की सॉइल, ठीक, बैकफिल की सॉइल, तो ये सब सॉइल के ऊपर हम रिटेनिंग जो भी वॉल होगी उसकी डिज़ाइन करने वाले, ठीक है। शियर की प्रोवाइड करेंगे, फिर ओवरटर्निंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन एंगल, ये सब हम फाइंड करेंगे रिटेनिंग स्ट्रक्चर का ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स मतलब जो हम टनल्स कहते हैं, ठीक है। काफ़ी बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं, वो टनल के अंदर से जाती है, ठीक है। कोई भी गुड्स एंड वेगन्स होते हैं तो वो हम लोग टनल के थ्रू भिजवा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। या फिर आप काफ़ी बार हम लोग रोड मतलब क्या है हाई रोड वगैरह बनाते हैं टनल्स के अंदर, तो उस टाइम जो टनल हम जो अंदर टिक करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल नहीं रहता। उसके लिए हमें स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप और काफ़ी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें सॉइल की पढ़नी पड़ती है। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो टनल है उसका डायमीटर कितना रखना है, शेप कैसा रखना है, वो सब, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की बात करें मतलब क्या हुआ, कटिंग और फिलिंग, ठीक है। अब हमारी सॉइल किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना कट करना है, कितना स्लोप देना है, कितना ग्रेडियंस देना है स्लोप के ऊपर। अगर हमने जो हमारी सॉइल है उसके अंदर कम कोहेजन और एंगल इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ही कम है, तो उसका स्लोप हम कम रखना पड़ेगा, ग्रेडियंट कम रखना पड़ेगा। ज़्यादा रखेंगे तो फेल हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके बाद आता है अपना पेमेंट की डिज़ाइन। अब पेमेंट डिज़ाइन मतलब सिंपल रोड, ठीक है। पेमेंट है उसके अंदर सभी जितने लेयर है चारों के चारों लेयर सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि सबग्रेड मतलब अपना पूरा अर्थ, उसके आएगा ऊपर आएगा सब बेस जहाँ पे हम लोग बड़े पत्थर रखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आता है बेस मटेरियल जिसके अंदर हम सॉइल पार्टिकल सैंड सिल्ट वो सब रखते हैं। और उसके आता है ऊपर सरफेसिंग। सरफेसिंग मतलब जो बिट्यूमेन और एस्फाल्ट का लेयर का लाइनिंग बनाते हैं वो। तो जो भी सरफेसिंग है उसके नीचे की हर एक चीज़ सॉइल के अंदर आती है, तो उसके हमें पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम पेमेंट की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तब जाके हमारा रोड है वो पर्टिकुलर जो भी व्हीकल होगा उसका व्हील लोड कैरी कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम्स मतलब कि जो हमारा डैम रहता है, ठीक है, पहले के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग अर्थ डैम ही बनाते थे, जब कंक्रीट और आरसीसी डैम इन्वेंट नहीं हुए थे, उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम वो लोग रॉकफिल डैम या फिर अर्थफिल डैम बनाते हैं।
तो जो अर्थफिल डैम होता था उसके अंदर वो लोग इम्परवियस मटेरियल और परवियस मटेरियल का यूज करते थे। इम्परवियस मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू पानी पास ना हो पाए, समझ गए? पास तो हो पाएगा मतलब बहुत ही लिटल मात्रा में हो पाएगा, बहुत ही कम मात्रा में हो पाएगा, ठीक है। तो उससे मटेरियल को हम इम्परवियस मटेरियल कहेंगे। और परवियस मटेरियल की बात करें तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सा मटेरियल, जैसे सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, दे आर परवियस मटेरियल। एंड इम्परवियस मटेरियल की बात करें तो जैसे प्लास्टिक, सिल्ट हो गई और क्ले हो गए, तो वो इम्परवियस मटेरियल। तो हमें बेसिक उसकी भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अगर हमें इसका नॉलेज होगा सॉइल का, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तो उसके ऊपर से हम डिजाइन ऑफ अर्थ डैम कर पाएंगे इजीली। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में स्कोप ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में और उसके लिमिटेशंस एंड यूजेस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।